everyone. Good morning, sir. Thank you so much for your precious time again. And we are starting our second spoken class. So, ma'am, you have not noted down somewhere. So, please take somebody's copy after the class and you can note down. We have videos also in our YouTube. So, at least I request everyone to watch at least one time so that it can be beneficial to you and children also. So, in previous class, all of you please close your copies first. Close it. Close it. Close your copies, ma'am. Close means one. Yes. Please close it. Close it. So let's revise first what we have learned in our previous class. What we have learned one by one, please let me know. What we have practiced in our previous class. Past present tense का पढ़ते हैं. Yes, we were talking about the present tense. There are three kinds of tense we have: present tense, past tense, future tense. And we have practiced two kinds. Means the present tense has four kinds: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. So we have practiced indefinite and continuous. So we have to move further. So we are just revising. So what we have practiced in our previous class in between present tense kinds. Yes, kinds. What are those? Continuous का कि indefinite. You have to English speak English here. This is the English class, so you have to. Okay. Somebody please open the gate. Please open the gate and keep it to there. So we have practiced what we have practiced in present tense, indefinite and continuous. So what is the rule? Anybody? Do you know, ma'am, what is the rule of present tense? Okay, no problem. What is the rule, ma'am? I have. Present indefinite. Yes. What is the rule? How many kinds of present tense we have? What can I do? It's your wish. If you don't want to practice, then it's okay. Yes, sir. Which? How many kinds of present tense we have? Anything? One or two or three? Just guesses. Any guesses? Yes, ma'am. Any guesses? Yes, sir. How many kinds of present tense we have? We have already practiced the kinds of present tense, past tense, future tense. So, how many kinds? Yes, please tell us. Four kinds of present tense we have. Means present tense have four kinds. So, what are those? Present indefinite. Indefinite, Present continuous. continuous, Present perfect continuous. perfect continuous, present perfect first. Present perfect. फिर for the present perfect continuous. Yes, so we have practiced the present indefinite and present continuous. So what is the rule? Anybody? In spite of this, ma'am, anybody? What is the rule? I have requested in previous class at least see one time, so that at least in a one day you need to just see it. When we see every day, whatever the things are, it is generally stored in our mind. So at least see one time in a day. So it will not help you if you will not practice. So what is the rule? Anybody? Do you know the rule? And all of you? You know the rule? Subject plus verb का first form. Yes. Very good. Subject and first form of verb. We are not putting here conjunction. We are not putting here object. We are not putting here articles and all. We are just making simplest sentence. So subjects. So all of you know what are the subjects? And you know what are the subjects? Please let me know. Okay, no problem. Yes, sir. What are the subjects we have? No. Yes, sir. There are how many kinds of group we have? How many groups we have of subject? Two groups. In the first group, what are the words we make in the first group? C. In the, name. in the first group we have I, we, you, they names. In the second group we have he, she, it, name. I request you all please revise everything. So we have made the sentences. Now you know the subject, ma'am. I, we, you, they names. This is the first group. The second group we have he, she,
सिंगुलर नंबर का बहुत मतलब होता है एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। हिंदी में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में 2 ही होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का मीनिंग होता है, फर्स्ट ग्रुप में जब यूज़ करते हैं फर्स्ट ग्रुप को वर्ब के साथ में, तो वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है, लेकिन सेकंड ग्रुप के साथ में ही, सी, इट और नेम भी, ये वर्ब के साथ में एस या फिर ई एस जुड़ता है। ये दोनों में अंतर होता है। तो अभी हम लोग बनाएंगे एक एक को, अभी हम लोग बनाएंगे एक एक सेंटेंस जल्दी से, उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया आपको पता चल गया? हाँ, तो एक आप सेंटेंस बनाइएगा। एक सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट पार्ट, वर्ब का 3 फॉर्म होता है, जनरली 4 और 5 होते हैं, लेकिन 3 को पढ़ते हैं। फर्स्ट में जैसे कि गो, वेंट, गॉन हो गया, वो फर्स्ट फॉर्म हुआ, वेंट सेकंड हुआ, थर्ड है गॉन हुआ, है ना। इसी तरह से फॉर्म्स होते हैं उसके। कई बार तीनों का स्पेलिंग सेम होता है, पढ़ते अलग हैं, कई बार तीनों अलग अलग होते हैं, और ज़्यादातर मामलों में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो है सेम होते हैं, है ना। तो हम लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बताइए प्लीज, जोर से बोलेंगे ताकि रिकॉर्ड हो जाए। देखिए इस अभी नहीं आया है, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कुछ नहीं। हाँ आप बताइए तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, हाँ बताइए। अभी केवल सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं, और लगा सकते हैं, ठीक है। ही अगर बोलेंगे तो गोज बोलेंगे, सेकंड ग्रुप है, सीधा लग सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ही गोज बस बोलेंगे। अभी क्या है, ज़्यादा हम लोग बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं बनाते हैं, जो कि प्राइमरी लेवल पे हैं, बाद में धीरे धीरे बनाएंगे। स्कूल जो है नाउन है, तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक आप बताइए सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट से मेक अ सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस, देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नुकसान होगा और मुझे क्लासेस बंद करने पड़ेंगे, सीधा सी बात है। मैं आकर के यहाँ मेरा अपना भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग का भी हो रहा है ना। पिछला वाला रिवीजन अगर नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे मेरे को बंद करना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है सर। मैं बोल दूँ डायरेक्टर सर को कोई फ़ायदा नहीं है, बंद कर देते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू स्कूल का। स्कूल अपना 1 घंटा दे रहा है हमारे काम से, तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बंद करेंगे। हाँ सर बताइए, एक सेंटेंस, एनी वन सेंटेंस, एनी सब्जेक्ट, एनी वर्ब यू कैन यूज, एनीथिंग सर। It will be, if you will make error then also no problem, no problem, just say it. Yes, you make it. This is book. इजी नहीं लगाना। Present indefinite बोला ना। She has a Rohan. नहीं, she नहीं, he is a dog. अभी सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब तो मैंने बोला ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब होता ही नहीं है। दिक्कत यह है कि हो सकता है शायद आप लोगों ने कोई भी नहीं देखा होगा कॉपी यहाँ से जाने के बाद, देखे हैं? ठीक है, तो अच्छे से देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि याद हो जाए वो चीज़ें। हाँ आप बता सकते हैं मैम, फर्स्ट फॉर्म भी लगाना पड़ेगा कैसे? और रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको पता है मैम? It runs. क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, किसी को पता है? हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ दैट्स इट, उससे सरल और क्या हो सकता है ना। हाँ बताइए, अब बना सकते हैं एग्जांपल। हाँ, she play, he eat, सी प्लेस, सेकंड ग्रुप जब भी आता है, सी प्लेस, ही इट्स, he eats. ग्रुप रखने का यही मतलब होता है, ही, सी, इट और नेम में ऐसे या फिर ये जुड़ता है वर्ब के साथ में, पहले ग्रुप में नहीं जुड़ता है, आप नोट कर लीजिएगा। अब बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक बना दीजिए कोई, सब्जेक्ट और वर्ब को पता चल गया क्या है? सी कम्स, सेकंड ग्रुप है ना। हाँ यस, सी अभी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लगाना है, और आईएनजी जो है कंटिन्यूस में लगता है, तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ग्रुप हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ हम लोग अभी देखते हैं, और सही मतलब बंद करूँगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा केवल मैं ही आगे चलता रहूँ, बाकी लोग घसीट रहे हैं मेरे साथ, जैसे बैल जो है आगे खींच रहे हैं, लेकिन बाकी लोग चलने के बजाय जो है घसीट रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये बंद कर दिया जाएगा। स्कूल अपना टाइम दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ।
मेरे को क्या जरूरत है किसी की सिखाने का, कोई फायदा नहीं है मेरे को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज नहीं तो कल बड़े बड़े जगह में हो सकता है काम करें, तो कुछ सीखते रहेंगे अच्छी बात, नहीं सीखेंगे तो भी मुझे कोई नुकसान होना नहीं उससे। हाँ, तो हम लोग देखते हैं हाउ मेनी, लेट्स मूव फर्दर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश, हाउ मेनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वी हैव? 26। जो बोला जाएगा उसे भी नोट करिएगा, प्लीज मत नोट करिएगा। 26 अल्फ़ाबेट्स वी हैव। एंड हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स वी हैव? शी टोल्ड मी 26। यस, एनी? अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट सुने, हिंदी में वर्डमाला होते हैं ना, वैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं उसको। हाँ, तो कितने होते हैं? 26। वेरी गुड। निशा मैम? 25। 25। अमर सर? 26। 26 आप ही बोले दो। 26 एंड 26। अभी नोट मत कीजिएगा कुछ भी, बाद में नोट कराएंगे इसलिए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हंसाते हैं आपको थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या क्या रखते हैं? फर्स्ट अल्फ़ाबेट में कुछ रहता था वो, हाँ, ABCD वगैरह रहता है ना, Z तक रहता है। सेकंड ग्रुप में क्या रहता है? तो इसमें आ गया, हाँ बताइए। ये मतलब मैं खेल रहा हूँ असल में और वैसे ही अच्छा लगता है जब खेलते खेलते कुछ बताए तो। क्या रहेगा भाई बताइए? फर्स्ट में तो हमारा ऐसे जे तक हो गया था, सेकंड में क्या है? 26 रहेगा सर। क्या 26? वो अल्फ़ाबेट A to Z 26 25 जो बोली ना मैं। हाँ, ये 26 है, तो मान लेना है 26 रहेगा, अच्छी बात। तो अभी सेकंड में क्या रहेगा? अभी हमारे पास 25 और बचे, क्या क्या लिखना है उसमें? हाँ, पहले वाले अल्फ़ाबेट में ये है कि Z, सेकंड वाले में क्या रहेगा? स्मॉल वाला। तो एक ही बात है, उसको कर्सिव लिखे, स्मॉल लिखे या कुछ भी लिखे, इंग्लिश तो ही है वो, D2Y है? D2Y से लेके Y तक। नहीं, ये जेड तक हो गया, इसका मतलब ये बताया कि बीच में जो भी आता है वो हो जाता है। तो फिर Z मैथ्स से में आगे ऐसे लिखना जनरली सबको ना लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, 26 अल्फ़ाबेट तो कंप्लीट हो गया ना, वो तो कंप्लीट हो अभी तो बोला। गया। फिर देखिए अल्फ़ाबेट मतलब एक ही होता है, हाँ उसमें 26 कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, हाँ ठीक है, इसीलिए मैं लिखने को मना किया था तो हमको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं, अब हिंदी में भी एक ही वर्ड वाला होते हैं, उसके 52 अक्षर होते हैं, है ना? चलिए ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अब अल्फ़ाबेट, वन अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं सीधा, अल्फ़ाबेट सॉरी ये गलत है, कुछ भी गलत लिखूंगा तो आप लोग बताएंगे, हाँ। यू कैन नोट डाउन इट, अल्फ़ाबेट इक्वल टू 26 characters, or later we can write characters, letters. Yes, please note down it. So, if anybody will ask you how many alphabets we have, then you know that. Anybody has any doubt? How many? Suraj sir? How many alphabets we have? One alphabet we have, and inside one alphabet we have 26 characters or letters. Generally, we call them letters, characters and letters. Those are the equal ones. And in Hindi we have 52 characters and only one word mala we have. Yes. Now we have seen the characters. In between, in previous time also, I have told you, I have requested you so many times to ask the question. If any word is going beyond your head, please raise your hand, or you can ask any time that time. Don't let the go back. So, word. What are the word? Characters. We already have characters. Word. What do you understand by word? W-O-R-D. Word.
Yes, sub. How can we make a word? How can we make? Some characters. Yes, by using the character. Like, just example. Give me example of a word. How, when, Yes. How? when, When? what, When? Yes. It means by combination of two or more than two words, we will have word. Or sometimes it happens only one character also has the meaning, and that is also a word. Only one character. Which is the character? That I. Very good. Yes, that's it. I जो है एक प्रॉपर शब्द है, और ऐसे देखें तो कैरेक्टर भी है. तो एक शब्द में एक ही कैरेक्टर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस. You can note down all this. सेंटेंस. मैं इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पहले से पता हुआ है. आप लोग कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैं जनरली एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे. यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा जो है कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर भी है, ये ज़्यादा हो सकते हैं, है ना. एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर कोई रहेगा, उसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए. जैसे आई का मीनिंग होता है, लेकिन बी का कुछ नहीं होता, तो उसको हम लोग एक वर्ड हम लोग नहीं बोल सकते हैं, है ना. आई का होता है मीनिंग, इसलिए है, इसलिए उसको हम लोग वर्ड बोल सकते हैं. सेंटेंस. more than two words. सेंटेंस क्या होता है? दो words में सेंटेंस कैन हैव मोर देन टू वर्ड्स. मुझे नहीं लगता कि कोई एक वर्ड है जो कंप्लीट सेंटेंस हो, है ना. तो यू कैन गिव द एग्जांपल प्लीज. यस, गिव एनी वन सेंटेंस. It is a ball. Yes, very good. It is a ball or ball. Ball. So this is a sentence. We can see here. There are, Sangeeta ma'am, how many words are there in this sentence? How many words? Sangeeta ma'am, how many words we have? आपने कैरेक्टर, वर्ड और सेंटेंस को समझ लिया? कुछ भी नहीं रहे. आप बताइए. How many words we have in this sentence? वही है. ना पूछना है ना समझना है, बड़ा दिक्कत है. आप मैं कई बार रिक्वेस्ट किया हूँ कि पूछे ना भाई बार बार. Four words. हाँ, 4 वर्ड्स हैं. आपको कैरेक्टर समझ में आए? किसको बोलते हैं? कितना words है? मैम देखिए, कुछ ही बोलता हूँ ना, ध्यान से सुन लीजिएगा. कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं, समझ में आ गया सर? किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे कि क्या हो गया? हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज़ इसमें जाएगा तो अच्छा लगेगा, है ना. जैसे मैं बोल रहा हूँ ना क्लियर, तो वैसे बोलेंगे, है ना. क्या हो गया एग्जाम्पल? हाँ, ऐसे जेड तक जो अल्फ़ाबेट है वही है. ठीक है. और मैम पूछते भी नहीं हैं ना, आप पूछ रही हैं, मतलब यही हो गया कि चलो बोले हैं सर, अटेंड कर लेते हैं, घंटा तो बैठना है, उसके बाद आ जाएंगे. तो ऐसा मेरे को बंद करना पड़ेगा. हाँ, तो अभी कैरेक्टर समझ लिए. वर्ड किसको बोलते हैं मैम बताइए? Word जैसे कि how, when. हाँ, ये एग्जाम्पल हो गया. कैसे बनाते हैं उसको? जिसमें एक वर्ड आता है. कैसे बनाते हैं सर? वर्ड को कैसे बनाते हैं हम लोग? लेटर्स को जोड़ लेते हैं. हाँ, words can be made by calculating the letters or characters. It can be only one character also, like I. It can be multiple characters, like we have seen here how, when, where, everything. This table, bench, pen, those are words. Words जो बनते हैं वो characters के मेल से बनते हैं, जिसमें एक characters हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. और sentence कैसे बनते हैं? Word और character. हाँ, इसको हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि हम लोग एक वर्ड बोल देते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पर जब हम लोग धीरे धीरे जाते हैं तो क्या होता है, जैसे 1 किलो बोलते हैं, उसके बाद टन बोलते हैं, उसके बाद कुछ और बोलते हैं, है ना. किलोमीटर जैसे होता है, उसके बाद में लाइट ईयर होता है, और ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछला वाला चीज़ें छूटती जाती हैं. लेकिन हमको पता रहता है, कोई अगर पूछे तो हम बता सकें पिछले चीज़ों को भी, है ना. जैसे छोटा चीज़ को मापने के लिए मिलीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, लाइट ईयर होता है, तो ये सब होता है.
तो वैसे ही हम लोग पीछे की चीज़ें छोड़ते हैं लेकिन उसको याद रखना होता है। सो अभी बताइएगा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव, मिस्टर मैम बताइए, प्लीज बताइए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव इन दिस सेंटेंस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव इन दिस सेंटेंस। यस, हाउ मेनी? You know? Yes. Characters means this is one character, this is second, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many words we have here, Sangeeta? How many words we have in this sentence? क्वेश्चन को समझ में आया है? ना पूछे भी नहीं। मैम अपना ऑफिस में जाकर बैठेंगे या अगली बार से आप ऐसा करेंगे ना तो नहीं आएंगे, तो फायदा नहीं होता है इससे। अच्छा नहीं लगता है मुझे, बहुत दुख लगता है। सर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे बताइए हिंदी मुझे भी समझ में नहीं आता है, आप बोलिए ये समझ में नहीं आया क्या पूछे हैं? ठीक है। यस यस सर, हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव इन दिस सेंटेंस? 4 वर्ड्स, 1 2 3 4। ओके, सो हमने अभी कैरेक्टर देख लिया, वर्ड देख लिया, सेंटेंस देख लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं जो सेंटेंस मेकिंग वाला जो हमारा था उसमें। आप लोग इसको लिख लिए हैं, सेंटेंस एक एग्जांपल वगैरह लिख लीजिए प्लीज, प्लीज नोट डाउन। लिख लिए सब? So we have practiced our present indefinite tense and present continuous tense. Now what is the third one? What is the third one? Yes, present perfect. You can note down present perfect. To make a sentence in present perfect, what do we need? To make a sentence in present perfect, what do we need? एक प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए, वेरी गुड। सबसे पहले हमको देखना होता है रूल, क्योंकि वर्ड्स हमको पहले से पता है। वर्ड्स इसीलिए मैं बताया कि कैरेक्टर, वर्ड और सेंटेंस को इसीलिए बताया ताकि रूल, सबसे पहले हमको रूल देखना होता है। व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट, वेरी गुड। कुछ बता पाएंगे आप लोग? आप दोनों में से इसके बाद क्या है? कुछ भी गेस करिए, गलती हो कोई दिक्कत नहीं। क्या थर्ड पार्ट? सब्जेक्ट का थर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ आप बोले, गलती हो चलेगा। मैं चाहता हूँ बोलते रहे जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है ना। बोलना सीखना है हमको, बोलना सीखेंगे तभी हमारे दिमाग में क्या है पता चलेगा। बताइए मैम क्या हो सकता है? कोई भी गेस करिए। ये सब्जेक्ट का थर्ड पार्ट में मैम बोली है, आप बोलिए कुछ भी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए ना, मेरे कान तक आवाज आए। यू मतलब क्या? यस सर, क्या रहेगा? कुछ भी गेस कीजिए, ताकि कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में क्या आता है वो सही हो जाता है, या तो गलत होगा या सही होगा, दोनों चीजें। सही होगा ना, कुछ सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो कुछ नुकसान नहीं होना है अपने को। क्या हो सकता है सर? क्या हो सकता है? वर्ब रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन वर्ब अभी नहीं आएगा। हाँ मैम, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, वेरी गुड। चलिए चलो है, इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखा हूँ, इसको फुल में हम लोग लिख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं उसको। तो ये क्या क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट आर दोस? हाँ, हमने देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा ना, तो हर एक हेल्पिंग वर्ब अलग अलग जगह पे यूज होता है। एक हेल्पिंग वर्ब को दूसरे टेंस में हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे कंटीन्यूअस के टाइम में इज एम आर यूज होता है, वो और कहीं नहीं यूज होता। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा वो, फिर कहीं नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अलग ऑक्सिलरी वर्ब है। देयर इज
additional auxiliary verb for present perfect tense. So what are those, please? Any guesses? Has, have, Yes, very good, ma'am. It is, have, has. I have written this have has means आप दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, either have or has. Okay? So after that, what do we have? have, third form of verb. Third form of verb. So what do we write? V3. In the I have written only V3. You can take the notes, ma'am, and you can write the full form also. Or I am just telling, if you want to note down, you can note down right now. So third form of verb. That's it. So can you make a sentence, please? He is born. She has a running. So what are the subjects you already know? He, she, I, Yes. we. So make sentences by your own. You have the rule and you have to make the sentence. Just make the one sentence, please. और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत पूछ लीजिए प्लीज, है ना? छोड़ो ना जाने दो, ऐसा वाला बात ना रहे। आप जितना धीरे, देखिए मैं एकदम धीरे पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे शायद कहीं क्लास नहीं होता होगा। और चाहे तो मैं 10 गुना और धीमा कर दूंगा, मैं फ्रेम को रोक देता है ना जैसे कैमरा में, ये अच्छा नहीं लग रहा स्पीड में जा रहा है तो फिर राघव जैसे स्लो में चलो, तो वो भी करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए धीमा जा रहा हूँ ताकि समझ सके, और धीमा बोलिए तो मैं 2-3 10% 20% और धीमा कर सकता हूँ। सर हो गया। एक ही वर्ड में पूरा क्लास खत्म कर दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए बस। बन गया सर? यस He is born. यस ऑन द ऑन एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हाँ, सब्जेक्ट आपको पता है। देखिए बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हमको वर्ड्स पता होगा, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, विद्वान है, हम लोग सब लोग, मतलब कमी सब में होती है सर, मेरे में भी है। टीचिंग कर रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं टॉप हूँ कोई, अभी बहुत सारे मुझ में हैं, आपसे ज़्यादा ही है। तो सबसे पहले हमको वर्ड चाहिए होता है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बस हमको लगता है कि नहीं पता है, लेकिन हैं ऑलरेडी। सबसे वर्ड्स तो पता ही है, अब हमको रूल पता होता है कुछ भी काम करने से पहले। जैसे इस काम पे आने से पहले आपको रूल पता है, आपको सुबह वॉशरूम जाना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ आना है, ये रूल हो गया। अब एक बार पता लग गया तो फिर आप रोज कर सकते हैं, ऐसे ये रूल है। जैसे सब्जी बनाना हो गया, सबसे पहले गैस चालू करना है, या सबसे पहले प्रिपरेशन करना है, जो भी रोटेशन है जिसका भी जैसा भी वैसे करते हैं, वैसे ये रूल है। दिस इज द रूल। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू नो? हाँ, क्या क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, क्या क्या होते हैं बताइए। देखिए याद नहीं करेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। ऐसा है कि आप देख लीजिए पीछे से, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। मैं बोला था कि एक बार ठीक है, लेकिन दोबारा देखने की नौबत ना आए। उसमें इतना ही है, आई वी यू द नेम्स है, अभी इसी के नेम है बस, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उतना बोलने में। आई वी यू द नेम्स इसी के नेम, इतना ही है, ऐसे ही याद करना है। ठीक, एक सब्जेक्ट हो गया, आप देख के बना लीजिए प्लीज, जिन लोगों को नहीं पता है, लेकिन मुझे बहुत दूर लग रहा है कि नहीं पता है। ये स्मॉल लेटर में रहेगा मैम, कहीं पर कुछ भी नहीं लिख देंगे, ठीक है? लिखिए, पहले करेक्शन कीजिए। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये पेन क्या हो गया? पेन कोई काम नहीं होता है। पहले आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में आप बनाइएगा। ध्यान से देख लीजिए रूल को, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, वेरी गुड। हैव का यूज हम लोग जनरली करते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ में, इसलिए ग्रुप बताया गया था। आई वी यू द नेम्स, ये जहां यूज होगा हैव यूज करेंगे। ही सी इट नेम के साथ में हैज। फर्स्ट ग्रुप जो है लिखे हैं आप, देख लीजिए। आई वी यू द नेम्स, हाँ वो लाना होगा, एक जगह रहेगा साथ में, कहीं भी आप लिखिए, एक जगह रखिए, लाइए वो। आई वी यू द नेम्स फर्स्ट ग्रुप में, ही सी इट नेम, उतना तो कम से कम। कौन है? हेल्पिंग वर्ब, इसको मैं लिखाया था, आप लिखे भी हैं। अगर एक दिन में एक बार भी ऐसे जैसे पढ़ भी लेंगे ना तो
6 दिन में याद हो जाएगा सारा चीज, केवल एक बार पढ़ना बस है उसको। हाँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखो, ये ऑक्सिलरी वर्ब बोलो। अब ये एग्जांपल है उसके, ठीक है, बनाइए सर, ये देख लीजिए आपने कहीं पर लिखा है ना, एक बनाइए प्लीज, करेक्ट कर लिया। अलग जगह बनाइए। हाँ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपको देखिए वर्ड का यदि किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता है, मेरे से पूछ लीजिए और उसको लिख लीजिए। जिसका सेंटेंस बना रहे हैं थर्ड फॉर्म नहीं पता है, अब मैं कितना बार बोलूँ, मेरे को नहीं समझ आता है। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या आज नहा खाएं सर के लिए, ये भी पूछ सकते हैं, और क्या बोलूँ मैं, खाना खाएं कि नहीं सर, मतलब कुछ भी पूछ लीजिए आप, मैं सबका जवाब दूंगा, बस पूछिए बच्चा अपना। नहीं पूछ रहे हैं, जैसे थर्ड फॉर्म नहीं पता पूछ लीजिए, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म इसका क्या है, सब पूछिए ना, सब पूछिए। हाँ, किसका थर्ड फॉर्म आपको नहीं पता है, कौन सा सेंटेंस आप बनाना चाह रहे हैं, कौन से वर्ड का थर्ड फॉर्म नहीं पता है, मुझे पूछिए, बना लिया, सही बनाए, वेरी गुड, एकदम मैं देखिए वर्ब जो होता है क्या होता है, जनरली वर्ब इसको बोलते हैं वर्ब, काम बोलते हैं, वो के काम नहीं है, ऑब्जेक्ट है, नाउन। हमको क्या करना है, सब्जेक्ट आपको पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक लगानी है, लेकिन पहले ग्रुप के साथ में हैव लगता है, सेकंड ग्रुप के साथ में हैज लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, ऑब्जेक्ट मैंने बोला ही नहीं, या नाउन मैंने नहीं बोला, ठीक, काम अपने को दिखाना है, काम, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ, हम लोग काम करते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, फैन ऑन किए हैं, सारा जो काम है वो है। ऑब्जेक्ट जब बोलूँगा तब ये टेबल, बुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल, स्टैंड, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो आएंगी ऑब्जेक्ट या फिर नाउन बोलने से। आप पूछ लीजिए ना, देखिए मैं आपको, हाँ वह देखिए मैं अभी जस्ट बोला ना कि आपको थर्ड फॉर्म नहीं आता है, पूछ लीजिए। हाँ, तो आपको लिखने से पहले पूछ लेना चाहिए ताकि उसमें गलती ना हो कि इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब जितना हो सके पूछिए प्लीज आप लोग। हाँ हाँ, क्रिया मतलब हाँ कुछ भी काम, जैसे कि काम बताइए, हाँ टाइपिंग करना एक काम हो गया, और ये सब अभी नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस मत बनाइए, ये भी ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी रूल्स बताएंगे कम से कम घर में जाकर 10-10 सेंटेंस बनाइए उसी से संबंधित, अपने मन से अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वर्ब के साथ में, और नहीं पता है तो उसको पूछ लेंगे। उस ग्रुप में, नॉन टीचिंग वाले ग्रुप में आप शायद नहीं होंगे ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर होगा, उसमें आप भेज दीजिएगा, ऑप्शन से पूछ लीजिएगा, तो पूछना नहीं कर घर में मैं कौन से नंबर पर भेजूँ, तो बोलेंगे टीचर्स ग्रुप में भेज दो, तो उसमें भेज दीजिएगा, क्योंकि पर्सनल में भेज दो बोलेंगे, मैं पर्सनल में भेज दूँगा, मैं सबका जवाब दूँगा। ये आपके पास मोबाइल है, पता ही ज़्यादा सर चीज़ें आपको पता ही होगा, मोबाइल है, कंप्यूटर है ना, टाइम होगा तो बता दें, ठीक है। लिखने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा कि जैसे राइट आप यूज़ कर रहे हैं, राइट लिखना एक काम हो गया, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सबको पता है मैम क्या होता है फॉर्म उसका, क्या होता है, अभी तो मैं बोली, एक बार और बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए उसका, ऐसे बोलिए राइट रोड रिटर्न, ताकि यहाँ तक आवाज़ आए, माइक अपने पास है नहीं अभी, तो जोर से बोलेंगे राइट रोड, अभी थोड़ा बोलिए सर, राइट रोड रिटर्न, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं पता होगा उसको लिख लीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू डोंट नो समथिंग यू शुड राइट, राइट रोड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रोड, RODE. yes very good, my writing is not good but I request you all, you have to write it properly, right road return, you should write there return, what is the spelling of return, WRITE. yes, right road return, this is the
और जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं उसका फॉर्म नहीं आ रहा है, और ये सबको ढूंढ के हम लोग याद भी कर सकते हैं, राइट और रिटन, इसको याद करना होता है। जनरली याद नहीं, आप प्रैक्टिस में लाइन बार बार लिखेंगे तो बन जाता है। यू डोंट नीड टू राइट इट एवरी टाइम, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस सो दैट वेरी गुड। ऐसे अपने से आप काम कर दिया है ना, ये अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, मैं बातें भूल जाऊँगी, वेरी गुड, ये होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि प्रयास आपकी तरफ से हो, और ये चीज बात एंड भी तो है, लिखते समय ध्यान रखेंगे कुछ चीजें छूटे ना। देखिए कंजक्शन अभी नहीं लगाना है, और ये साउंड जो है काम नहीं होता है, राउंड, अच्छा राउंड हाँ नहीं अभी कंजक्शन हाँ राइट मतलब होता है लिखना, रोट मतलब लिखा, पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे जब पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ेंगे उस समय उसका यूज होता है। रिटन का यूज होता है फर्स्ट ये परफेक्ट में, है ना, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में रिटन का यूज होता है, और रोट का यूज होता है सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट किसमें परफेक्ट में, हाँ पास्ट परफेक्ट में भी होता है और पास्ट सिंपल में भी होता है सेकंड फॉर्म का यूज, हम लोग देखेंगे आगे। देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, वो ठीक है, उसके बाद में क्या लगाना है, हैव लगाना है, फर्स्ट वर्ब के साथ में हैव लगाया, ठीक है, ये अभी मत लगाइए, कंजक्शन को काट दीजिए उसको। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आपको राउंड का यदि थर्ड फॉर्म नहीं पता था आपको पूछ लेना चाहिए था लिखने से पहले कि इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है। मैं अभी बोला ना कि जो नहीं पता है आप पूछ लीजिए, आपस में बात करने के बजाय मेरे से डायरेक्ट पूछते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है, वो टीचर नहीं है, आप मेरे से पूछेंगे, जो भी पूछना है जितना पूछना है आप मेरे से पूछिए। हाँ इसको लिखने से पहले आप पूछ लीजिएगा, गलत नहीं लिखिएगा, जरा भी डाउट होता है तो उसको पूछ लीजिए। राउंड, राउंडेड, राउंडेड, राउंड, राउंडेड, हाँ। और यदि मैं कहीं पर गलत हूँ, हो सकता है मैं भी देखूंगा बाद में, कहीं पर गलत हूँ मैं सुधारने को बोलूँगा, आपको सुधार लीजिएगा, या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर गलत है मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से यही होता है जहाँ तक मुझे याद है। अभी लिख लीजिए, अगर कुछ गलत होगा तो मैं बाद में करेक्शन करवा दूंगा इसमें। देखिए जनरली सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है सेम होते हैं, लेकिन समटाइम ये भी होता है कि तीनों वर्ड्स एक ही हों, जैसे रन में तीनों में एक ही होता है, रन राउंडेड होगा ना ये, हाँ राउंडेड है ये, और रन में देखिए तीनों में वही होता है, रन रन होता है ना, रन होता है, तुरंत बताया है ना, रन रन, मुझे यही याद आ रहा था कि तीनों में सेम होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट और थर्ड सेम है, ऐसे ही हाँ ये दोनों सेम रहता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड, दिस इज द थर्ड वन, those are the same, second and third is the same, and we can see here the first form and the third form are the same, they have the same spelling as rain, this is the second form, yes। अभी बना लेंगे, एक सेंटेंस बना के देंगे सर, बनाएं प्लीज मेक अ सेंटेंस। देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाना है, आराम से देख लीजिए सर, आराम से देख लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, यहाँ पर जो है हम अभी ये इसी में काम कर रहे हैं। जब हम लोग सारा टेंस पढ़ लेंगे तब अपने हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे, तब हम कुछ भी लगाइएगा, लेकिन अभी तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वो नहीं है, अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग टेंस के लिए यूज होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे टेंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे स्कूल में काम नहीं कर सकते, ऐसे ही है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज कीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, दैट्स इट, प्लीज मेक इट, वेयर इज दैट, हाँ बनाइए, एक एक बना के बताइए ना, आप चाहे तो और बना सकते हैं, या आप समझ गए हैं तो ठीक है। आराम से देखिए और पूछ लीजिए, नहीं बन रहा है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आस्क द क्वेश्चंस as many times as you can, continuously, please ask the question continuously। सर रीड का थर्ड फॉर्म, रीडन है क्या? रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम होता है, वही ना।
जहाँ भी गड़बड़ लगूँ ना आप बताइएगा मुझे, है ना। आप तीनों में से कोई भी बताइएगा, मतलब इतने लोगों में से सर यहाँ पर गलत हो गया है, बिकॉज आई आल्सो मेड मिस्टेक्स। सो स्पेलिंग विल बी द सेम बट वी रीड इट रेड रेड पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, लेकिन स्पेलिंग सेम होता है। यस, प्लीज नोट डाउन इट, लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, आपको नहीं पता था। हाँ, आई है रॉन्ग, यहाँ पर ये स्मॉल लेटर है, फिर से सुधार के लिखिए। सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तभी फर्स्ट फॉर्म कैपिटल होता है, बाकी बीच का जो है कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में होते हैं। समटाइम जब हमको नाम लिखना होता है तब भले ही होता है, या कुछ स्पेशल चीज होता है तब होता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, आई हैव, जोर से बोलिए, रिटर्न। हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे ताकि आपकी आवाज़ भी उसमें आए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कोई सवाल पूछ रहा है जवाब दे रहे हैं, ठीक है। रिटर्न होगा एकदम सही। यस, व्हाट इज डू, डू डिड डन, यस दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली। यस, डू that is word also and auxiliary verb also, we will see that do did done it is one. Yes, as when we take it like a word, that is do did done, and when we will use as a auxiliary verb, then it will be the second part, did. Do did done you can write. Yes, It can be used in like present perfect tense or not. the word, yes, you will take it. Like it has done. Yes, definitely it has done. Excellent. Yes. हाँ, फर्स्ट ग्रुप के साथ में सब्जेक्ट, फर्स्ट पहले हमारा सब्जेक्ट हम रखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको नहीं देखेंगे कि हमको है लगाना, इसके साथ क्या है, एक सीक्वेंस में जाते हैं ना। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको रखना होता है, ठीक। क्लास 1 पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ते हैं, इसी तरह से। आप क्या सब्जेक्ट रखना चाहते हैं? हाँ, आई रखना चाहते हैं तो आई भी यू दे नेम्स के साथ में हैव लगाते हैं। आई हैव, थर्ड फॉर्म क्या रखना चाह रहे हैं? नेम। नेम कोई काम नहीं होता है, काम हमको लिखना है, वर्ब मतलब काम, काम क्रिया, कुछ भी काम, लिखना, पढ़ना, जाना, खेलना, कूदना, ये सब। तो देखो लगाइए प्लीज, क्या लगेंगे? कोई से भी काम है, एक कोई भी काम के लिए इतना सारा काम होते हैं। रीड, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? देखिए बताइए, रेड होगा। थोड़ा जोर से बोलिए सर प्लीज, हाँ कितना बार बोलूँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ आनी चाहिए ताकि पता चले कि सवाल जवाब हो रहा है। मेरे जैसे बोलिए, है गलती होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा थर्ड फॉर्म? रेड, वेरी गुड। स्पेलिंग वही रहेगा लेकिन पढ़ेंगे रेड। आई हैव रेड, मैंने पढ़ा, ठीक। इसका खासियत ये होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम, सॉरी, आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है, काम शुरू हुआ अभी प्रेजेंट टेंस में, वहीं पर खत्म हो गया, ये इसका मतलब होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं करता हूँ या मैं खाता हूँ, तो मैं रोज खाता हूँ वाली बात हो गया, काम स्टार्ट हुआ है और रोज रोज बार बार रिपीट होता है। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, मीन्स काम स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है? आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया, काम स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया। तो ऐसा अलग अलग मीनिंग होता है। हाँ सर पूछिए, वेरी गुड, ऐसा पूछते जाइए, है ना। ये सब्जेक्ट के 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट जब आप यूज करेंगे तो हैव रहेगा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ताकि आपको याद नहीं है फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप है क्या। लेकिन वेरी गुड, आप 10 बार पूछ रहे हैं, मेरे बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम पूछ तो रहे हैं, पूछते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप के साथ में ये यूज होता है, सेकंड ग्रुप के साथ में ये यूज होता है। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपके समझ के लिए, फर्स्ट सेकंड, ये ग्रुप के लिए है, ठीक, उसको याद करना पड़ेगा। हाँ पूछिए प्लीज। हाँ,
सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट It, he, she, it, them. हाँ वेरी गुड ही। अभी आप ही बताएंगे ही के साथ ये सेकंड ग्रुप में हमको पता चल गया। अभी क्या लिखूं मैं, आप बताइए। हैज, वेरी गुड। इतना सिंपल है सर कि क्या बताऊं मैं। और इसके बाद में वर्ब का थर्ड वर्ब बता दीजिए कोई भी। हाँ रन, Rounded. ये राउंडेड ठीक है मैम, ठीक। I have also considered for that. इसको छोड़ देते हैं अभी, बाद में मैं देख करके बता दूंगा। मुझे ना किसी याद है असल में रैंडमली मैं पूछ रहा हूँ। तो दूसरा वर्ड देख लेते हैं, दूसरा कुछ बताइए ना दोनों तीनों में से, ताकि वोकैबुलरी बढ़ सके हमारा। Meg. हाँ अदर वर्ड लीजिए तब तो वोकैबुलरी बढ़ेगा। दो तीन तो है हमारे पास काम चलाने के लिए, उसी में काम चला रहे हैं। इसको ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसको बाद में देखेंगे। लेट्स सी सम अदर वर्ड। यस जंप, वेरी गुड जंप। Jump. What is the second part? Jump. Jump. We are sure this is. Jump. And third one? Jump. Very good. Yes, that's it. We can see that we all know everything. We know everything. Yes. So, what should I write here? Jump. What should I write? Jump. Say loudly, please. Jump. Jump. J-U-M-P-E-D. That's it. We have seen here. This is the second group of subject. He has jumped. Yes. In the second group of subject we use has and the third form of verb. There is a verb jump and third form is jump. He has jumped. वो कूद गई या कूद गया। वेरी गुड। चलिए अब बना सकते हैं दूसरा। हाँ बनाइए प्लीज। मैग का मैग होगा तो मैग मतलब बनाना। हाँ मेड 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 मैग मेड 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 मेड। Yes. We can see here also. These are the two sentences has the same spelling. सर जब वेयर मेक इज यूज्ड मेक में एड होना चाहिए ये कब यूज होता है What? MAKED मेक कब यूज होता है Make. There is no word make. दिस नो वर्ड Yes. It has made us. Make made made. Make नहीं होता सर, made ही होता है। Made. हाँ। और ईट का बनेगा क्या It. It has made. हाँ it has made. It का क्या पूछ रहे थे? फिर बताइए। बॉर्डर को उधर रखिए, दिख नहीं रहा है। ओके ना दे। हाँ बॉर्डर ना उधर रख दीजिए। हाँ हाँ डबल स्पेलिंग होता है मैड और मैड जो है मेक का वो उसको क्या पढ़ेंगे अलग ये सेकंड फॉर्म, ये भी मेड है ये भी मेड है। दोनों मैड पढ़ेंगे। हाँ ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। मेड 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 सेम है दोनों, सेकंड और थर्ड मेड ही बोलते हैं। See has eaten, it has done, made, we have spoken, we have read. Has closed. Yes. बहुत बढ़िया। आप यदि आप कुछ चीज़ों को आप बताना चाहें ना, आप बीच में आप बता सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। आपको लगता है कि ये सरल है सर, मैं इसको बताऊंगा तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है ना, या आप लोगों में से भी कोई सर ये मुझे आता है मुझे बताने चाहिए, ये होना चाहिए। कोई भी छोटा चीज़ आपको लगता है कि सरल है मैं बता सकता हूँ, आइए और बताइए। सी है सी क्या है? हाँ कुछ कम नहीं है कि सेकंड ग्रुप के साथ में लगता है हैज। ये क्या ये ऐसे जब भी होगा तब इसको एक लाइन से काटेंगे और आगे लिखेंगे, कभी ओवरराइट नहीं करेंगे। सब लोग से रिक्वेस्ट है ओवरराइट नहीं करेंगे, एक लाइन से कट करके आगे लिखेंगे। नहीं समझ में आता है वैसे में, है ना? ठीक है, ये स्मॉल लेटर रहेगा। हाँ ठीक है, आप कुछ बनाइए मैम। हाँ
ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक। जोर से बोलिए ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये मकसद ये है कि जोर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, रिमाइंडेड। हाँ, may I erase all this? Reminded। और वर्ड्स को ऐसा नहीं कि वो आपके काम से संबंधित हो तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप सोचिए कि क्या क्या काम करते हैं हम और उससे क्या क्या वर्ड्स आते हैं, उससे बनेंगे। रिमाइंड, रिमाइंडेड। इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या? ठीक है, सॉरी, रिमाइंड। चलिए देख लेते हैं, बाद में करेक्शन करेंगे। ठीक है, रिमाइंडेड। चलिए बनाए कुछ में टिकट बनाए हैं। Yes, 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 absolutely, absolutely right. Very good. It has reminded, मतलब नहीं ये सही है, लेकिन it मतलब कौन? मतलब बताइए आप सही लिखे हैं सर, गलत नहीं है उसमें, लेकिन कौन रिमाइंड करा रहा है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये एकदम डीप वाला क्वेश्चन है, कौन रिमाइंड करा रहा है? यदि it has reminded बोलेंगे तो कौन करा रहा है? कोई तो काम करा रहा है ना, कोई याद करा रहा है, कौन करा रहा है? सही लिखे हैं एकदम, उसमें कोई गलत नहीं। कौन याद करा रहा है? हाँ एक हाँ हाँ, वस्तु तो खैर बोल नहीं सकता है, तो कौन बोल सकता है? मतलब क्या पूछ रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? जैसे it has reminded यदि बोल दें तो कौन याद करेगा? जीवित वस्तु रिमाइंड करा सकता है। जीवित वस्तु हमारा बिल्ली हो सकती है, डॉग हो सकता है, टाइगर हो सकता है, यदि पाले हो तो नहीं पालते हैं, उधर के सेब वगैरह लोग पालते हैं, टाइगर वगैरह शौक से पालते हैं। हाँ बिल्कुल है ना, लेपर्ड वगैरह सारा चीज़ पाले जाते हैं, तो कुछ चीज़ वो हो गया तो वो याद दिलाया, हो सकता है। ठीक है, ड्रा, ड्रीव, ड्रोन। ड्रा, DRAW, ड्रा, ड्रीव, वेरी गुड, ड्रोन। And we can drawn or drawn? drawn it should be. I think so, drawn होगा. Drawn, yes. Drawn. Drawn. Yes, we can see in our mobile also. We have the Google right now. We have mobile. We have friends. We can ask. We can take help of them. Almost the class is over and we have finished only present perfect tense. So it doesn't matter. So the motive is to understand everybody. This is why we are not going so fast. So have you made any sentence, ma'am? Have you made? She has drawn. She has drawn. Yes. उसने बनाई या कुछ चित्र बनाई या कुछ भी. बना लिए हैं. तो ये स्मॉल लेटर में लिखे ना, हम उसको काट के, गलती है उसको दूसरा कॉपी बनाऊंगी. नहीं, इसी में लिखिए, काटिए उसको और लिखिए वहीं पर पीछे. हाँ होने दो ना, तभी तो पता चलेगा ना. गलती को रखने से थोड़ी सुधरता है. इसको एक लाइन में काट दीजिए, यहीं पर है लिखिए. हाँ, इससे पता चलेगा कि हमने ये गलती किया है, हमने ये सुधारा है ना. गलती करके नहीं सुधारे में दिक्कत है ना. एक सेंटेंस बनाइए मैम. आपने जो पहले हमने पढ़ा था उसको लिखे हैं ना सबको. हाँ, प्लीज मेक अ सेंटेंस. We have about to finish our class and we have practiced only one kind of sentence. The present perfect we are going very slow, but the motive is to understand everything. Yes. Draw मतलब बनाना होता है, लेकिन ड्राइंग
खाना बनाना नहीं हो सकता। फिर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट में नेम भी आता है ना, तो नेम हाँ। नेम, एक नेम अगर लिखेंगे तो सेकंड ग्रुप हुआ, ठीक है, और नेम्स में सर एक सेंटेंस में हाँ बताइए। जैसे सर का नाम हाँ, अमर। हैज ड्रॉन अमर हैज जोड़े ड्रॉन कौन सा यूज करेंगे तीनों में से? कौन सा वाला? तो ये क्या है, क्या लिखा है? ड्रॉन, ठीक है, अमर हैज ड्रॉन। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्न नहीं, हाँ इजी रहता है मैम। हाँ, this spelling is wrong. हाँ, L-E-A-R-N. Very good. L-E-A-R-N-E. Now it is okay. Yes, yes. Learn. The second and the third are also same. Learn and learn places. सीखना, सीखा, सीखा। ड्रॉ मतलब बनाना, मतलब ड्राइंग से संबंधित होता है, न खाना बनाने से। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रोन। ड्रॉ किया, ड्रॉ करना, ड्रॉ किया, ड्रॉ किया। और leave का third form है? लिव, लिव होता है, लिव, 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 सॉरी लिव, यही वाला लिव ना, लिव, Leave की ये छोटी वाला लिव बोल रहे हैं। सर ये तो लाइव हो गया ना? हाँ, कौन सा वाला लिव बोल रहे हैं? L-E-A-V-E. छुट्टी वाला L-E-A-V-E. वो छोटी वाला बोल रहे हैं। इसको जब यहाँ पर लाइव पढ़ते हैं, लेकिन सेंटेंस में जनरली लीव होता है, सेंटेंस के बीच में लीव होता है, लेकिन इसका अलग से जब पढ़ते हैं तब लाइव होता है, लाइव रिकॉर्डिंग हो गया। लेकिन सेंटेंस के बीच में अगर पढ़ेंगे आई लिव इन रतन दोस्तों, ये स्पेलिंग सेम होता है। स्पेलिंग सेम होने के बाद भी सेंटेंस अलग होने से मायने बदल जाते हैं, मतलब बोलने का तरीका और उसको बदल जाता है। लाइव और छुट्टी वाला बोल रहे हैं, लीव, L-E-A-V, छुट्टी, ये काम नहीं गई, काम नहीं गई, टेकिंग लीव बोल सकते हैं, ये काम नहीं है। छुट्टी लेना, टेकिंग लीव, लीव काम नहीं। दूसरा कुछ बनाइए इसका। हमारा 1 घंटा खत्म होने वाला है। हाँ, रमेश हैज लर्न, वेरी गुड, सही तो बनाया सर, एकदम ठीक है। हाँ हाँ मैम, कुछ बनाइए इसका। देखिए सर, 1 घंटे में अगर एक भी सेंटेंस नहीं बना तो कितना दुख की बात हो रही है, मुझे कितना दुख लग रहा है। मैं केवल इसको जनरली, जैसे आप लोग टीचर हैं और एडमिन्स हैं, आप लोग को पढ़ाने में मुझे 5 मिनट करना चाहिए। मैंने 1 घंटा बताया इसीलिए ताकि सीखें, उसके बाद में नहीं सीखेंगे तो क्या। 5 मिनट का रहता है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, टीचर लोग को पढ़ाते हैं जब हम। गेम जो है क्रिया नहीं होता है, नहीं, गेम कहाँ क्रिया हो, खेलना क्रिया हो। हाँ और राइडिंग, हाँ, राइडिंग का सर रेन, हाँ, आप एक भी नहीं बना पाए, बहुत दुख लग रहा है, क्या कर सकते हैं। नाउ इट्स द क्लोजिंग टाइम, प्लीज रिवाइज आवर दोज इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज do it certainly because I have to go the class actually. Yes. Thank you everybody for your presence. Thank you.